اور آخر میں ہوں گے مولا بخش چانڈی اور پوچھیں گے کیا پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر طنز و مزاح کا یہ حال کیوں ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ٹیلی ویژنز کے اوپر ہمیں وہ کامیڈی نظر نہیں آتی جو اس سے پہلے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے, جس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ملک کے ایک مایہ کامیڈین رائٹر بھی ہیں, فلموں میں بھی کام کیا, لکھا بہت, کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب عمر شریف صاحب. آپ کا شکریہ کہ آپ نے فور مین شو میں اپنا انٹرویو دیا. السلام علیکم بڑ صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عمر شریف صاحب. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ طنز و مزاح کا یہ حال کیوں ہے, آپ سمجھ رہے کیوں گر رہا ہے اس کا معیار اتنا, آپ کیا کہیں گے, آپ کی تو بڑا ویژن ہے اس پہ. ارے میرے بھائی یہ جو آج کل کے کامیڈین ہیں, اب آپ کو لے لو, آپ کو چلکو دی جاتی ہے تو منہ میں چلکو لگا کے پھینک دیتے ہیں, کامیڈی کر سر یہی اسی معیار کی میں بات کروں جو آپ کر رہے ہیں. یہ مطلب ہو گیا ڈن ٹو ڈیتھ ہو گیا. اب آپ بتائیے گا ذرا اتنا معیار کیوں گر رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کامیڈی کے نام پہ جو بےہودگی ہو رہی ہے ٹی وی پہ, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کا ذمہ دار اوباما ہے, اوباما ہے, یہ اوباما ہے. میں بتا رہی ہوں اوباما ہے. بولو کیوں سر؟ کیونکہ ہمارے پاکستانی عورتیں کہیں دنیا کسی بھی ملک کی عورتیں ہیں, عورت تو جانتے ہیں عورتیں سر ہاں عورتیں یہ سوئی میں جب دھاگا ڈالتے ہیں اور دھاگا سوئی میں نہیں جاتا, کہتے ہیں امریکہ نے کروائے تو کامیڈی کا بیڑا گرک بھی امریکہ نے کروایا ہے. یہ لے یہ یار دیکھیں نا پلیز صاحب, آپ کس قسم کا مذاق ہے, یہ تو وہی بات ہو گئی. مطلب میں کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہا, میں آپ سے بات کیا کروں. السلام علیکم سر میں نکل نہیں رہے نا عمر بھائی, آپ نکل نہیں رہے, بات کو سمجھ ارے بھائی نہیں کہاں سے نکلوں کھو تو پاکستان سے نکلوں. ابھی ویسے بھی بلا رہے ہیں, میں جا نہیں رہا, پاکستانی نکل لو. ابھی آپ لوگ کیوں نہیں نکلتے ہو, کامیڈی کا ستیہ ناش کیا تم لوگوں نے. سر آپ کا شکریہ یار, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ مطلب نئی چیز لائے نا سر, نئی چیز کی بات ہو رہی ہے. اچھا نئی چیز لائیں گے ہم کترینہ کیف کو لائیں گے. کترینہ نئی چیز ہے, پاکستان میں لائیں گے کیف, کترینہ لاپ کرے. ابھی نئی چیز ہم کیا لائیں, ابھی میرے زمانے میں تو کامیڈی ہوتی تھی میرے بھائی, آپ لوگ کے زمانے میں ستیہ ناش بیڑا گر ستیہ ناش ہو گیا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ عمر شریف صاحب. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نکلے سر, نکلے آگے نکلے. ایک منٹ بٹ صاحب, ایک منٹ نہیں, اللہ کی قسم, ایمان سے نہیں کیا ہوا سر؟ نہیں ٹائم پاس کر لیا تھا. بہت شکریہ عمر شریف صاحب آپ کا. جی خواتین حضرات, پروگرام میں شامل کریں گے جناب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو اور پوچھیں گے کہ عزیر بلوچ کے بارے میں دیا گیا ان کا بیان کیا ان کی دل کی آواز ہے یا مجبوراً وہ ان کو اب تک بھائی کہنے میں مجبور ہیں. جناب ذوالفقار مرزا صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے ایکسکلوزیولی جوائن کیا. بہت بہت شکریہ خالد, آپ تھوڑا اس لائٹ کو برائٹ کروائیں. سر برائٹ تو ہے آلریڈی, اور برائٹ کرائیں یار, برائٹ ہو گیا سر. خدا کی قسم اس کو اور برائٹ کرائیں. سر برائٹ ہے سر آلریڈی, بہت ٹو برائٹ. خالد تم ایک بھوکے ننگے آدمی ہو, لائٹ برائٹ کراؤ. اور سر وہ کر بھائی, اور سر ہو گیا سر, بہت برائٹ, ٹو برائٹ سر. اب میں آپ کو بتاؤں خالد, یہ آصف علی زرداری آپ کا سوال کیا تھا؟ نہیں سر سوال تو میں نے آپ سے ابھی تک کیا ہی نہیں, پھر آپ آصف علی زرداری پہ جمپ کر گئے نا. سوال اب میں پوچھوں, مجھے عادت پڑی ہوئی ہے اس لیے. نہیں سر میں ذرا جاننا چاہوں گا, آپ نے جو الزامات کا سلسلہ شروع کیا تھا لگانے کا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے عملی جامع کی صورت میں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی کی ہوئی باتیں ساری آ رہی ہیں, آپ کو پتا تھا سر یہ ہونے والا ہے یا آپ کی assumptions تھی سر؟ میں جب بھی حق کی آواز اٹھاتا تھا, آپ جیسے ہمارے میڈیا کے دوست رحمان ملک کی باتوں میں آ کر میری باتوں پہ لافٹر لگا دیتے تھے اور اس کے بعد ہنستے تھے کہ جیسے ذوالفقار مرزا غلط بات کر رہا ہے, وہ ذوالفقار مرزا خدا نخواستہ توازن کھو بیٹھا ہے. اور میں بھی یہی سمجھنے لگ گیا تھا خالد. نہیں آپ کیا سمجھنے لگے سر؟ کہ میں جیسے کوئی چڑیا ہوتا ہے ویسے ہو گیا ہوں میں. سر ذرا فرمائیے گا ذوالفقار مرزا صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا, یہ بڑے بڑے لوگوں کے چہرے اب بے نقاب ہونا شروع ہوں گے آفٹر دس عزیر بلوچ ایپیسوڈ,
آپ سمجھتے ہیں کہ مزید لوگوں کے چہرے سامنے آنے والے؟ خالد اب جرم کا سلسلہ نہیں چلے گا. یہ زمینوں پہ قبضے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے, عدی ہماری بہن بنی ہے عدی نے کیے, اویس مظفر ٹپی نے کیے. میں عزیر بلوچ کو اون کرتا ہوں, وہ میرا بھائی ہے. اور جرم خالد یاد رکھنا, یہ جرم ڈونلڈ ٹرمپ بھی کرے گا, ہلری کلنٹن بھی کرے گی, تو بچے گی نہیں. پاکستان کی رینجرز, سندھ کی رینجرز اور پاکستان کے عوام اس رینجرز کے ساتھ ہے. ہم ڈونلڈ ٹرمپ, رکی مارٹن اور بروس لی, جس نے بھی جرم کیے عدالت کے کٹہرے میں آئے گا وہ. سر لیکن یہ امریکہ کہاں سے آ گیا, ڈونلڈ ٹرمپ کہاں سے آ گیا, موویز کہاں سے آ گئی؟ میں تو یہاں کی بات کر رہا ہوں. خالد کراچی میں امن ہوگا تو مشرق وسطی میں بھی امن ہوگا, ہر دنیا کی ریاست میں امن ہوگا. کیونکہ کراچی ایک بزنس کا ہب ہے, یہاں سے بزنس ہوتا ہے, موبائل کا بزنس ہے, اس کے علاوہ فلاں بزنس ہے, بہت سارے بزنس ہے. کراچی کے حالات ٹھیک ہوں گے, پوری دنیا کے حالات ٹھیک ہوں گے. اور یہ میرا ایمان ہے اور یہ میری آرزو ہے, خدا کی قسم یہ سارے آصف علی زرداری اپنے ٹنروں کے ساتھ آ جائے, میں بھی دیکھ لیتا ہوں, لڑوں گا میں ان کے ساتھ. سر یہ غصہ تھوڑا کم ہو, شرجیل میمن کا ذکر لیا ہے. ارے شرجیل میمن, میں آپ کو اس کی اوقات بتاؤں, یہ کس کا نام لیا ہے؟ اچھی آج چوک میں اچھی میں تمہیں ڈسا. یہ شرجیل میمن یہ کیا کام کرتا تھا, اگر میں نے بتا دیا تو سنسر ہو جائے گا. سب پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے. پلیز اب میں ذرا, اگر آپ کو پتا ہے دل پہ ہاتھ رکھو بٹ, اور دنیا کو بتاؤ یہ کیا سپلائی کرتا تھا. سر میں بالکل, میں ذرا فرمائیے. آصف کے قریب سے پہنچا. سر چھوڑے نا سر, کیسے آنسر ہو جائے. ذرا فرمائیے گا, اگر آپ کے پاس اتنے سارے ثبوت ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کا موجود ہے, تو سلطانی گواہ بن جائے. سر ایک سٹیپ آگے ہیں, نکالیں ان سارے گیم کو جو آپ کا الزام بھی لگتا ہے کہ آپ صرف باتیں کرو. آپ آئے سلطانی گواہ بنے اور ختم کریں اس معاملے کو. سر نہیں, میں یہاں طبلہ بجا رہا ہوں, میں یہاں عاطف اسلم کا گانا اب تو عادت تھی ہے تجھ سے ملنے کی وہ گا رہا ہوں, میں گٹار بجا رہا ہوں. میں ثبوت کے ساتھ ہمیشہ سے, جب سے میں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے, میں ثبوت لے کے میڈیا پہ آیا ہوں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں. فرمائیے گا, ان سارے حالات کے بعد جو پیپلز پارٹی کی ہمیں کھلبلی نظر آ رہی ہے اس کے اندر, کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی سندھ پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ گرپ لوز ہو گئی ہے سامہاؤ سندھ پہ؟ سندھ پیپلز پارٹی کا قلعہ, اس پہ مجھے ہنسی آتی ہے. آپ آؤ میرے پاس بدین میں نے دنیا کے سائنسدانوں کو بلایا ہے ادھر. یہ پیپلز پارٹی نے سندھ سے روٹی چھینی ہے, چاول چھینے ہیں, گندم, چنا, یہ سب چھین لیا ہے. اور خالد, انہوں نے سندھ کو بالکل مارس بنا دیا ہے. یہ جو مارس سیارہ ہے یہ بنا دیا ہے. میں نے ہبل ٹیلیسکوپ والوں کو بولا ہے کہ سندھ میں آؤ, اپنے سائنسدانوں کو لے کر آؤ, جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کو لے کر آؤ. ٹھیک ہے, اور بدین میں رہو. آپ کہیں نہیں ہو, آپ بدین میں رہو, بدین میں بیٹھو. سر یہ شرجیل کا فون آ رہا ہے, میں اس کو ذرا پک کر لوں. میں نے شرجیل سے تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ شرجیل سے کیا منگایا ہے تم نے؟ میرا دوست شرجیل تمہیں بھی سپلائی کرتا ہے. سر میرا دوست شرجیل. سر کیوں اتنا غصہ ہے؟ بہت شکریہ. یہ تھے خواتین حضرات. اور خالد بھوکے ننگے. جی خواتین حضرات, ارے تمہاری اوقات میں جانتا ہوں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ایز آلویز. اور جو یہ میرے گارڈز کو بہت شکریہ کوٹ کے اندر دے رہے تھے, خدا جی قسم مردن کا بچہ ہے تو 1 to 1 آ. جی خواتین حضرات, جتنے بھی SSP ہے ان کی آواز کم یا میں نہیں جی, یا وہ نہیں, ٹھیک ہے, تو نہیں, جی کیا بات کر رہے ہو خالد؟ خواتین حضرات, ذوالفقار مرزا آپ نے دیکھا کتنے غصے میں تھے. کیا آگے جا کے ساری باتیں مزید سچ ثابت ہوں گی یہ تو ہمیں بعد میں چلے گا. ایک چھوٹا سا بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ کو بتانے کے لیے. لیٹس ہیو اے کوئک بریک ہے, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوں گی بہت ساری چیزیں. کوئک بریک.
शामिल करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर, इसी मुल्क में जहां के हालात आपके सामने, स्कूल जिस मुल्क के बंद, खतरा हर तरफ, लेकिन इसी मुल्क में हमारी फैशन की दुनिया क्या सोचती है, क्या सोच रखती है। और इसी मुल्क के अंदर फंड रेजिंग के लिए हाल ही में एक ब्रंच हुआ जो ऑब्वियसली संडे को हुआ। उस ब्रंच के अंदर फैशन की दुनिया ने क्या किया, फैशन की दुनिया क्यों मिसिंग। हमारे शो से बात करेंगे हमारे बॉयज से और पूछेंगे कि फैशन की दुनिया में क्या है। बॉयज, अ वेरी वार्म वेलकम बॉयज, कैसे आप कैसे हैं खालिद? आज आपका ये इस किस्म का हुलिया, इसके पीछे क्या कहानी? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है खालिद। आप उसको थोड़ा सा तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसका डिटेल डिस्कशन आप हमसे सुनेंगे। आज ये जो हमारा हुलिया है, इसकी वजह यह है कि आज का हमारा टॉपिक एक बड़ा कंट्रोवर्शियल और ऐसा टॉपिक है इसमें मर्द और औरत की कोई इसमें फर्क नहीं है, और वो टॉपिक है फैशन। जब आपको किसी के कपड़े देखकर बहुत जोर जोर से हंसी आ रही हो तो आपने हंसना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फैशन है। और जब आप किसी के कपड़े देखने की कोशिश करें और आपको कपड़े नजर ही ना आए तो ये भी फैशन है। या कभी आपको किसी के बहुत छोटे कपड़े नजर आए, या किसी ने टाइयां टांगों पे पहन ली हो, या वो कपड़े जो अंदर पहनते हैं वो कपड़ों के बाहर पहने हुए हो, या साड़ियां मर्दों ने लपेट के नाकों पे मोजे पहन लिए हो, या फिर किसी ने हाथों में जूते डाले हो, तो आप उसे बिल्कुल पागल नहीं समझेंगे। ये शख्स जो है ये पागल नहीं है, इस पे तरस ना खाएं, ये है एक फैशन डिजाइनर। जी हाँ, जिस उम्र में लोग वजीफे करते हैं उस उम्र में ये लोग फैशन करते हैं। जी हाँ, फ्रिया अल्ताफ को ही देखिए और इनसे सबक हासिल कीजिए। पिछले दिनों आपको बताऊं कि एक किडनी का इलाज करने वाले एक हॉस्पिटल ने फंड रेजिंग के लिए एक ब्रंच का इनेकाद किया, जिसके अंदर बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स भी आए। मगर इन फैशन डिजाइनर्स ने जो कपड़े पहने हुए थे तो मैं समझता हूँ कि सबकी किडनियां तो नजर ही आ रही थी। और तो और उनको खाने और खुसूसन पीने के लिए जो चीजें उनके लिए थी और जो उनके हाथों में थी, उससे तो किडनी खराब होती है। और उनके कपड़े देखकर कुछ मरीजों की, 2-3 मरीजों की तो किडनियां फेल भी हो गईं। बल्कि हार्ट अटैक भी हो गए, और पहली दफा ये हुआ कि किडनी के हॉस्पिटल में दिल का इलाज हुआ। लेकिन खालिद, मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जो मर्द डिजाइनर्स हैं, ये मर्दों के ही क्यों नहीं कपड़े बना लेते, ये औरतों के कपड़े क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? यही सवाल एक डिजाइनर ने एक डॉक्टर से पूछ लिया। डॉक्टर ने कहा, आ जाओ, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ। अल्ट्रासाउंड कराया तो अंदर बहुत सारी लड़कियां नजर आई, खवातीन ही खवातीन। मैं आपको फैशन की दुनिया से ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के मशहूर सबसे बड़े डिजाइनर HSY जो लाहौर के तीसरे गंजे शेर भी हैं, इनके घर में डाका पड़ा। और आपको पता है जब इन्होंने डाकुओं को देखा तो क्या हुआ? क्या हुआ? HSY 6 फुट 2 इंच उनकी हाइट है, बड़े बड़े मसल है, भारी आवाज है। जैसे इन्होंने डाकुओं को देखा तो इन्होंने कहा, खबरदार जो तुमने किसी चीज को हाथ लगाया, मैंने खबरदार जो लगाया। खाले, आपकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। मैंने सुना कि डाकू वहाँ पे बड़े पिटे हैं उस दिन। इन्होंने बड़ी जोर जोर से उनको ऐसे चुटकियां नोची हैं, ऐसे 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 मारा है। तो ये तो लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एक और हमारे मशहूर फैशन डिजाइनर नोमी अंसारी के अभी नोमी अंसारी जिनके सर पे सिर्फ 3 बाल हैं और उसी पे वो सारा फैशन करते हैं बालों का। जी हाँ, तो उनके यहाँ भी यही ऐसी डाकू घुसाए वारदात हुई कोई? हाँ, वारदात तो हुई है, लेकिन उन्होंने बहुत छोटे कपड़े पहने थे जब उन्होंने डाकुओं को देखा। अच्छा। और उसके बाद उनको समझ नहीं आया, वो अंदर गए और बहुत बड़ी वाली कमीज पहन कर आए और झोली फैला फैला के उसको बदवाएं दी। अल्लाह करे तेरे हाथ टूटे। वो इतने बहादुर हैं कि वो किसी से नहीं डरते सिवाय लाल बेग के। लेकिन इन्हीं सारी चीजों से हिफाजत के लिए हमारे एक और बड़े डिजाइनर अली ज़ीशान अपने पति से तिलक लगवाते हैं। और तो और मुझे एक दफा अली ज़ीशान नजर आए, मैंने कहा कैसे अली? कहते कौन अली? मेरा नाम तो लता मंगेशकर है। एक दिन तो उन्होंने एक मोर पहना हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था सर मोर में कौन सी जगह से पहन लिया उन्होंने। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, और चलते हैं खालिद भट्ट की तरफ, देखते हैं उनके पास हमारे लिए क्या है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और फैशन वालों को आपने जो कुछ भी किया बड़ा गलत है, फैशन है, आप समझ नहीं सके उसको। और ये वहाँ जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ फंड रेजिंग हो रही थी, एक पॉजिटिव एलिमेंट भी है उसके अंदर, अगर आप उसको गौर से देखें। खालिद, अगर आपने उन तस्वीरों को गौर से देखा हो जो उन्होंने मरीजों के साथ लिए हैं, बेचारा
कहीं तो उसमें से बेचारे चले गए। वो किसी का ऑपरेशन हुआ है, किडनी के बराबर में रखी है। खालिद ये एलिमेंट तो नहीं लेकिन एलिफेंट वहाँ बहुत थे जिन्होंने छोटे छोटे जो है वो कपड़े पहने जी थे। बहुत शुक्रिया जी खातिन हज़रात। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। वापस आएंगे तो इस मुल्क की बहुत अहम सियासत और सियासी शख्सियात डिस्कस होंगी। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। थैंक यू बॉयज। और प्रोग्राम के इस खुसूसी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं जहां बात होगी कि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से अजीब से बयानात क्यों आ रहे हैं। कोई कहता है कि सेल्फी लेना एक नॉर्मल बात है, अगर उज़ैर बलोच के साथ किसी लीडर की सेल्फी आती है तो एक बहुत नॉर्मल बात है, खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया। दूसरे रहनुमा फरमाते हैं कि ये फोटोशॉप, हम तो कभी उज़ैर बलोच से मिले नहीं। क्या उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी बहुत बड़ा मसला बनने वाली है, बन चुकी है पीपल्स पार्टी के लिए? पूछेंगे। बहुत अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी के बहुत आ रहे हैं, टीवी पर डिफेंड भी कर रहे हैं। जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, आपका शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। बेटे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी तमाम सफा मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद भी कि आपने मेरे को बुलाया है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मैं अपनी पार्टी का इधर मौक़िफ़ जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जी सर, मेरा सवाल आपसे चांडियो साहब, जरा फरमाइएगा। एक तो आप थोड़ा लाउड बोलेंगे तो बड़ी आसानी होगी। ये अगर उज़ैर बलोच से कोई इशू नहीं है पीपल्स पार्टी, कोई खतरा लगता नहीं है, तो फिर आपकी सफों में इतनी खलबली क्यों नजर आ रही है हमें कि सब परेशान हैं, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से एक और मौक़िफ़ सामने, डर क्यों है इतना अगर आपका कोई लेना देना नहीं? खलबली कैसे आ गई है? मेरी किसी लफ्ज के अंदर आपको खलबली लगी है? ये लगी हो तो आप बताओ, मेरी आवाज से आपको खलबली लगी हो, मेरी बात से खलबली लगी हो? बात यह है कि पीपल्स पार्टी कुर्बानियां देने की आज की आती नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कुर्बानी दी है, हर बात पे कुर्बानी दी है, बात बात पे कुर्बानी दी है। और ये जहाँ तक उज़ैर बलोच की बात है, देखिए खलबली की मेरे अंदर ना किसी की मच सकती है, ना हमारी पीपल्स पार्टी के अंदर किसी की मच सकती है। उसकी वजह यह है कि बिजली है, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो भी इसको छुएगा वो जल जाएगा। ये अगर आप बात करते तो हमारी बात समझ में आती। दूसरा, पीपल्स पार्टी में वाज़ेह तौर पे ये है कि टेररिज्म या टेररिस्ट को हम लोग ना कोई अपने पास जगह देते हैं, ना जगह दे के उसको हम फारग करते हैं। बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को कब निकाला था, जब मोहतरमा भी अभी बहुत छोटी थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब होते थे, उस वक्त उसको निकाला था। इसकी एक्टिविटी पता चल गई थी कि ये लियारी के अंदर जो है ये गैंगवार है और 10 किस्म की चीजें हैं, तो भुट्टो साहब ने इसकी एक्टिविटीज की तरफ वजह से इसको बहुत पहले ही निकाल दिया था। नहीं, ये आप मीडिया वाले बात करते हैं, मीडिया वाले करते हैं। साहब, ऐसे फजूल दलाइल तो आपको जब देने पड़ते हैं ना, जब आप खौफजदा लगते हैं, और ये सब आप कर रहे हैं, आप खौफजदा भी हैं। खौफजदा, बहुत खौफजदा। पीपल्स पार्टी कोई खौफजदा नहीं है। ये आप जैसे छोटे एंकर जो है ये मीडिया में बैठ कर, मीडिया के अंदर आकर और जो है ये बात करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। पीपल्स पार्टी में कोई ना खौफजदा है, ना हो सकता है, ना आइंदा कभी होगा। नहीं सर, वैसे माजरत के साथ मैं, आप मुझे छोटा बड़े की बात नहीं करें यहाँ पे। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो कम से कम 2-3 एकड़ मैं फिट की बात ही नहीं करता, आपसे लंबा ही हूँ, लिहाजा ये इस तरह की बात ना करें। ये बात तो जवाब देने नहीं, मुझे पता है। आप न सिर्फ मैं कद की बात कर रहा होता तो मैं ये बोलता कि आप बहुत सारे एंकर से कद में बड़े हैं। मैं तो आपकी हरकतों की वजह से बोल रहा हूँ कि आप चाहते हैं पीपल्स पार्टी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इसका सत्यानाश निकल जाए, पीपल्स पार्टी ऐसी हो जाए जैसे थर के हवा में। आप तो यही चाहते हो ना कि मर जाए, हम खप जाए, कहीं कोई किधर चला जाए, कोई किधर चला जाए। ऐसे नहीं हो सकता। ये मीडिया के मेरे दोस्तों से मेरी गुजारिश है, ऐसा ना करें, ऐसा आप लोग ना करें। बैठे टीवी देखें, आओ बैठो, खाओ, चाय पियो, पानी पियो, रोटी खाओ और मौसम इंजॉय करो कि सर्दी है, गर्मी है, जो भी है। एक मिनट, बिलावल की मिस कॉल है, बिलावल की मिस कॉल है। बिलावल भी मिस कॉल दे रहा, वो पैकेज कराया ना उधर, तो लंदन है, वो सिद्ध थोड़ी है जो जितना मर्जी टेलीफोन इस्तेमाल करना है करो। नहीं सर, वो वहाँ से हमको मिस कॉल पड़ते हैं, हम यहाँ से कॉल करते हैं, यहाँ से सस्ती पड़ती है। जब करप्शन की बात होगी और ददारी साहब को गुस्सा आएगा तो हमें तो हंसी आएगी। तो फिर हमें भी हंसी आएगी। जब सिक्योरिटी की बात होगी तो हम भी हंसेंगे फिर। नहीं सर, हम भी हंसेंगे करप्शन के, और हम यूं ही हंसेंगे। जैसे कच्चे के इलाके में जाओ ना मोटरसाइकिल पे, तो यूं ही हंसते हम। नहीं सर, अभी आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है ना इस बात पे। जब अब उधर जाना नहीं चाहता मैं, लेकिन जब उधर थर में बच्चे मर जाते हैं, जब तो आपको गैरत आपकी जागती नहीं। यहाँ पर जब मसला होता है आप कहते हैं हमारी गैरत का मसला है, ईंट से ईंट बजा देंगे।
वहाँ गैरत क्यों नहीं जाती? इस्तग़फ़ार, आपको शर्म आनी चाहिए और मुझे तमाम क्यों मीडिया, आपको शर्म? नहीं तमाम मीडिया को आनी चाहिए। आप मेरी बात सुन रहे हैं, किसी नहीं आप बात करें। नहीं, जब वहाँ बच्चे मरते हैं सर, जब आपको अरे जब आपका टेरर आए गुस्सा क्या? किधर जाता है? टेरर तो कना है। आप कैसी बातें करते हो सारे मीडिया वाले बैठ के? अरे भाई, एक इंसान को अकल दी है, अल्लाह ने शऊर दिया है, आपको माशरे ने अकल दी है, पीपल्स पार्टी ने आपको फेम दिया है। सर ऐसे गुस्से वाले बयान तो जब देना जब आपकी कारकर्दगी पे सवाल होता है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। करप्शन में नहीं, बात होती है, आप मेरी बात सुनोगे ही नहीं तो फिर बात क्या परेशान हो गए? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। आप मेरी बात सुनोगे नहीं, आपको कैसे समझ आएगा? भाई, थर के अंदर किसने कहा है उनको रहने को? जब थर में पानी नहीं है, थर में खाना नहीं है, रोटी नहीं है, टुकड़ नहीं है, लस्सी नहीं है, दही नहीं है, दूध नहीं है, आप क्यों रह रहे हो? आधे से ज्यादा पूरा पाकिस्तान तो कराची में है, 1.5 करोड़ की आबादी, आप भी आ जाओ। इधर तो खाने का भी मसला नहीं है, कैसी इधर खाने का मसला नहीं है, इधर मिजार बना हुआ है, कराची शहर में मिजार है, बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा का मजार है, उधर आओ, खाओ, रोटी खाओ, टुकड़ खाओ, किसी ने मना नहीं किया है। तरफ से कायम अली शाह साहब का भी बने, उधर भी रोटी पर तकसीम है, मुझे इसका मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ उधर हम लोग लिक्विड तकसीम करेंगे। ऐसी बातें हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप यू आर हाई ऑन समथिंग। आई एम नॉट हाई। और अब मैं इस बात को पहले ही बता दूं, पहली बार आप ये अंग्रेजी में मेरे को ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब क्या है आपका? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ क्या बात कर रहे हैं आप? मैं वही रोज टीवी पे आके ऐसी बातें कर कोशिश ये तो 2 कान रखे शोशा के लिए रखे है कि सुनो ना जो बात करिए, हम जो बात करें भाई सुनो। कौन सी शोशा? मैंने कोई क्या इससे मुझे लतीफा याद आ गया, अरे भाई नहीं है तो फिर शोशा के लिए रखे क्या? नहीं सर, मैं कोई मतलब कोई सेंट बर्नार्ड तो नहीं, मैंने कान कटवाए हुए, कान शोशा के लिए बात सुनने के रखे। बात भी तमीज की हो ना सर, जो सुनी जाए, जो हजम हो हमें, जो लोगों को हजम हो, जो सुनना चाहते हैं। कभी आप खाने की बात करते हो भाई मीडिया वाले की, कभी हजम की बात करते हो, कभी बात की। बात कहाँ हजम होती है? कभी कोई कॉमन सेंस है कि नहीं है? अच्छा सर छोड़े, अगर आपको अरे जामशोर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है क्या? तेरे को पता नहीं है? सर अगर वहाँ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोर, आपको अगर तकलीफ तराने से नीचे लिखा होता है। सर अगर आपको उधर जाते हैं मेरी तकलीफ होती है, फिर मैं कराची में गटर कौन बंद करा सर? लगा दो, ये इल्जाम भी लगाओ, ये भी बोलो, ये भी हमारे ऊपर लगाओ, ये भी बताओ कि एक आदमी पहले मीटर रीडर था, वो अब गटर बंद करता है, ये भी लगाओ। ये भी लगाओ कि कायम अली शाह सही, कायम अली शाह। हम तो तैयार है भाई, हमें तो विक्टिम बना रहे हो, हम तैयार है। पंजाब के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या ये जा रहा है जो मेरे सामने पेपर्स भी पड़े कि गटर बंद करने का मतलब है? ऐसी बातें हो रही है कि गटर बंद किए जा रहे हैं ताकि बलदियाती इलेक्शन के फौरन बाद जो आपको एक चेंज नजर आए तो उसमें रिफ्लेक्ट। पीपल्स पार्टी गटरों के अंदर सुना चीजें दी जा रही है और आपको उबलते हुए नजर आ रही है। अभी क्यों हुआ ये मामला? कौन दे रहा है? आप लोग ही बोल रहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गटर की सियासत करती ही नहीं है, बात यही पे खत्म हो जाती है। और नहीं सर, मैं गटर की सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जो वाकई में हो रहा है, आप शायद शहर में रहते नहीं है ना आते हैं, गटर बंद हो रही है और बात हो रही है, आपके लोग भी बात कर रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है। बात ये है कि हम जो है गटर की सियासत नहीं करते, ये बात तो सबके ऊपर वादिया है। जहाँ तक MQM के लोगों की और हमारे दोस्तों की MQM वालों की ताल्लुक की बात है, हम उनको इख्तियारात भी देने को तैयार हैं। वक्त लगता है चीजों में, इख्तियारात आएंगे और इख्तियारात देंगे हम उनको, इख्तियारात नहीं छुपते। दूसरा ये कि गटर देखो, ये कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, खुदा ताला माफ करे, ऐसी पता नहीं क्या क्या खाते हैं। मैंने उस दिन वो वज़ीर आला का गटर बंद हो गया, वो थे नहीं, वो फिक्स करने निकले हुए थे अपने जितने भी वो कैंपेन, वो तो खुद ही कर रहे हैं ना, अपनी तस्वीर खुद ही बनाते हैं गटर पे और के लिखते हैं फिक्स। वो निकले हुए थे और ये वज़ीर आला उसके जो है ना वो गटर खराब हो गए। वो कोई बंदा तैयार नहीं है आने के लिए, तैयार नहीं, मैं बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। फिर मैंने बड़ा वाला बांस लिया है, बांस लेके मैंने गुड़ुप अंदर गया। भाई ना पूछो, ये गैर इंसानी कम अज कम मैं बता दूं। या तो ये खाते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, वही क्या खाते हैं। आप कह रहे हैं, आप तो खुद गटरे खोल रहे थे। और प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत अहम खबरें होंगी। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर, वापस आते हैं। उज़ैर बलोच साहब की जो गिरफ्तारी के बाद क्या पार्टी इस वक्त कौन आपको इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? ये अदी हैं या जरदारी साहब? What do you mean by क्या हम क्या उज़ैर बलोच से लेते थे? हम पहले इंस्ट्रक्शन खुद उज़ैर बलोच से लेते थे क्या? नहीं, अभी कौन आपको बता रहा है कि अब नेक्स्ट आपका मूव क्या होना चाहिए? ये अदी बता रही है आपको, जरदारी साहब बता रहे हैं, बिलावल बता रहा कौन है सर? देखिए, अदी से मुतालिक हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे जो है ना वो गलत फहमियाँ है।
अदी के बारे में इतनी गलत फहमियाँ है बस जिसका जहाँ जो दिमाग है वो कहता है। अदी के बारे में तो बहुत गलत फहमियाँ है। मैं आज एक गलत फहमी आपकी दूर कर दूंगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ ऐसा नहीं है, मैं तो जानता हूँ। तो आप कह रहे हैं ना, मैं बताया ना क्या कौन चला रहा है, तो बात हो रही है। मैं वो उसी तरफ, आप मेरी बात तो पूरी सुने के। अदी जो है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या नाम है, दोबारा दोहराएंगे? पीपल्स पार्टी सर, पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान की है। अद्दी ही जो है वो बस सिंध के मामलात में थोड़ा बहुत मशवरा ले लेते हैं आदमी। बस वजह का मशवरा नहीं लेंगे, आप नहीं लेंगे तो हम तो लेंगे। वजह का मशवरा लेंगे, उस पे चलेंगे। चांडिया साहब माजरत। अरे दिक्कत सही हो, काहे नहीं लेंगे भाई, लेंगे। नहीं चांडिया साहब, बात समझ नहीं रहे आप। पीपल्स पार्टी कौन सी कोई पूरे मुल्क में नजर आती है? एक काउंसलर आपका जीता नहीं, जाहिर सी बात है सिंध में रह गई ना सर, तो उसी का पूछेंगे। आप कह रहे सिर्फ एक सेगमेंट चला रही है, ये पार्टी सिंध में बची है सर। नहीं, वक्त की बात है प्यारे, वक्त की बात है। आज तुम चैंपियन है, कल हम चैंपियन होगा। देखो बात ये है कि आज अगर काउंसलर नहीं है तो कल हम दोबारा पूरे पाकिस्तान में छाएंगे, और इसके ऊपर हमारी प्लानिंग सारी चल रही है। अच्छा, ये छाने की प्लानिंग और बैकवर्ड्स है थोड़ी? नहीं, ये हम पूरे पाकिस्तान में आएंगे। हमारी पार्टी का जो इजलास हुआ, चेयरमैन साहब और ओ चेयरमैन साहब जो है, इन्होंने ओ चेयरमैन को चेयरमैन वो को तो आप लोगों ने उसका नाम बिगाड़ दिया ना, ओ से निकला है ये बार बार कहते हैं ओ चेयरमैन, बात सुन, ओ चेयरमैन इधर आ, ओ चेयरमैन आज हम कहा जा रहे हैं, ओ चेयरमैन उससे को बन गया है। जैसे कराची है, ये शहर आपका कराची जो है, इसका नाम कुलांची था, कुलांची था, वो बिगड़ करके आज कराची हो गया है। इसी तरह ओ चेयरमैन से को चेयरमैन बन गया। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी सिंध का सेगमेंट जो वो चला रही है, तो ये उजैर बलोच के साथ जो उनकी तस्वीर आई है, क्या वो लियारी में फुटबॉल खेलने गई थी वहाँ? कोई खुदा को मानो, कोई भाई अद्दी को फुटबॉल खेलते हुए देखा है? नहीं तो उधर आप क्या मेरा बोलो, मेरा स्पोर्ट्स का शौक है, अब मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाओ कि मैं फुटबॉल खेलने गया था, मैं वहाँ पर वॉलीबॉल खेलने गया था। उधर क्या कर रही थी शाह साहब जो है वो साइकिलिंग करने गए थे। उधर वो क्या कर रही थी? उधर बलोच साहब की तस्वीर जब आती है फरियाल साहिबा की, तो क्या करने गई थी उधर, क्या हम ढूंढ रही थी, वो मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, क्या आप देखें वो गई है, उधर आया है, ये मिली है उससे। ये तो आपने तस्वीर देखी ना? ठीक है। इसमें फुटबॉल ग्राउंड का है। वो तो लियारी में और कोई क्यों जाए? आप पकड़ेंगे ना, मीडिया वाले पकड़ेंगे। ये है, आपने मुझे नहीं, आप तस्वीर देख लेंगे, तस्वीर से हम डरते नहीं है। तस्वीर देख लेंगे, तस्वीर में कोई ऐसी बात नहीं है, हम वो भी देख लेंगे। तो दिखाएगा तस्वीर, जो फुटबॉल वाली तस्वीर है, जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अदी की तस्वीर है उजैर साहब के साथ। फोटोशॉप आजकल कंप्यूटर ने इतनी तरक्की की है। हमारे सदर में, सॉरी सक्खर के अंदर, हमारे आप यकीन करें सक्खर के अंदर कायम अली शाह का मुंह लगाया, पीछे अजदा बना दिया है। तो क्या वो अजदा है? दी ने ऐसा क्या किया? ऐसे कौन सी फिल्म कह रहा हूँ, ऐसे क्या कर लिया जिसकी बुनियाद पे उनके साथ में जाके ऑटोग्राफ लूंगा? अदी ने ऐसा क्या नहीं किया कि उनके साथ तस्वीर? आपको पता है अदी के साथ किस किस की तस्वीर है? मैं आपको नाम लेके जाता हूँ। दुनिया के टॉप के लोग हैं जिनकी उनके साथ तस्वीरें। एक तो मेरी है, एक मेरी है अदी के साथ जी, दूसरा बिलाल की है, बिलाल भुट्टो जी। बिलाल भुट्टो की तस्वीर है, उनके भाई की तस्वीर है, और बहुत सारी तस्वीरें हैं ऐसी। अगर मैं आपको ऐसी आपकी तस्वीर दिखाऊं कि आप भी उजैर बलोच के साथ खड़े, वो क्या कर रहे हैं आप क्या पुलिस वाले हो कि मेरे से इंटेरोगेशन कर रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो क्या कर रहा है, उधर क्या कर रहा है? तस्वीर भी है ना, स्क्रीन पे चल रही है। मेरी ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं है, मेरी तो कोई तस्वीर नहीं है। आपने ये फोटोशॉप किया है, मैं तो कभी नहीं मिला हूँ। भाई कालू खान जरा तस्वीर दिखाए, जरा ये प्रोड्यूसर साहब तस्वीर दिखाए। गैंगवार के लोगों को आप जानते हो, कालू खान को आप जानते हो। हमारे बात हम प्यार से कालू बोलते हैं, दिखाएं यार कालू। ये देखें जरा, बिल्कुल फोटोशॉप नहीं है, ना मैंने की, ना करवाई, ना हमने, हमारी टीम ने की। देखा कैसे? अल्लाह मेरे को माफ करे, मेरे को तो कभी उजैर ने मुंह नहीं लगाया है, मैं तो कभी गया ही नहीं। लियारी के लोग, मैं जब भी जाता हूँ मेरे सामने खोतों की एक मारपीट की करते हैं मेरे सामने, मैं कब गया हूँ? मैं तो गया ही नहीं। ये फोटोशॉप है सर, ये फोटोशॉप है। हम ईंट से ईंट बजाएंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आप अपनी तरफ से ये बातें करते हो और पता नहीं क्या क्या आपने फैला के रखा है, समेटो नहीं इन चीजों को। आपकी मैं 10 साल आपकी ये कैटरीना कैफ के साथ तस्वीर लगाऊं तो क्या आप वाकई में उसके साथ? अरे भाई आप टीवी में आते हो, ये कैमरे, ये जो कैमरा है ना, इन्हें जी सफाई होंगी, तस्वीर में कैमरा जी सफाई होंगी।
मैं तो 20 दफा इंटरव्यू करने 20,000 लोगों की तरफ जाता हूँ। ये इमरान हाशमी असली में है क्या? नहीं, ये कैमरे की सफाई है भाई। जी ख़वातीन और हज़रात, मौला बख्श चांडियो साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और हमारे इस तरह के सवालों का जवाब दिया। होपफुली आप आइंदा भी आएंगे और बेहतर चीजों पे ईट से ईट बजाय, ताकि हालात और माहौल ठीक हो और लोग जो मर रहे हैं उसका आप जायजा लें कि उस क्या वजूहत है उनकी। आपका शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, मौला बख्श चांडियो हमारे साथ हैं। अगली दफा जब दोबारा हाजिर होंगे तो इसी मुल्क की किसी अहम शख्सियत के साथ और उससे कोई अहम बात बढ़िया दुश्मन कई अल्लाह अल्लाह बिचा निकाल कर मार जना बलो चना बिचा तीर बिजा।